સુરતના વરાછા વિસ્તારની અત્યાધુનિક એવી પીપી માણિયા હોસ્પિટલ પ્રાઇવેટ લિમિટેડમાં આવેલ સૌનો બહુચર્ચિત કિસ્સો કે જેમાં જહાંગીરપુરા ખાતે નવનિર્માણ થઈ રહેલા પ્રધાનમંત્રી આવાસમાં કામ કરતા દરમિયાન તારીખ 27/2/2023ના રોજ 3 વાગ્યે ત્રીજા માળેથી શ્રમિક પડેલ અને શ્રમિકના શરીરમાં લોખંડનો સળિયો ગરદનની શરીરમાં ઘૂસી ગયો હતો। આ પરિસ્થિતિમાં આ શ્રમિકને તાત્કાલિક ધોરણે પ્રાઇમરી સારવાર માટે સિવિલ હોસ્પિટલ સુરત અને ત્યારબાદ વધારાની સારવાર માટે પીપી માણિયા હોસ્પિટલ પ્રાઇવેટ હોસ્પિટલમાં લાવવામાં આવેલ હતા। આ કેસ હોસ્પિટલમાં આવ્યા બાદ ડોક્ટર ગગન સાબુ જનરલ અને લેપ્રોસ્કોપી સર્જન દ્વારા સારવાર કરવામાં આવેલ હતી। આ સળિયો શરીરની અંદર 3.5 ફૂટ અને બહારની બાજુએ 1 ફૂટ લાંબો હતો, પરંતુ આ સળિયો ગરદનથી પેટ સુધી જતો હોય તો તેવા કિસ્સામાં તેનું સિટી સ્કેન કર્યા બાદ આગળની સર્જરીનું આયોજન કરવામાં આવેલ હતું। જરૂરી બધા જ રિપોર્ટ કર્યા બાદ અને 4 લોહીની બોટલો આપ્યા બાદ તેનું રાત્રિના 10 વાગ્યેથી ડૉક્ટર ગગનભાઈ સાબુ, જનરલ સર્જન કાર્ડિયોથોરેસિસ સર્જન ડૉક્ટર રવિ સાગર પટેલ, કાર્ડિયાક અને જનરલ એનેસ્થેટિસ્ટ ડૉક્ટર ધ્રુવિન લિંબાડ અને ડૉક્ટર સંકેત કરકર દ્વારા સર્જરી કરવામાં આવી હતી અને આ સર્જરીમાં આયોજન મુજબ પહેલાં પેટના ભાગે ચીરો મૂકીને આંતરડા અને કિડનીની તપાસ બાદ જે તે નાની ધમનીને નુકસાન ન થયું હતું તેનું બ્લીડિંગ ચેકિંગ કરવામાં આવેલ અને ત્યારબાદ બ્લીડિંગ રોકવામાં આવેલ અને ત્યારબાદ જમણી બાજુની છાતીને ચીરીને સળિયાને કારણે જે કંઈ ફેફસાના શ્વાસના માર્ગને નુકસાન થયું હતું અને આ સળિયાના કારણે ફેફસાના આંતરડાની વચ્ચે આવેલ પડદાને નુકસાન થયેલ શ્વાસની નળી અને આ ડાયાફ્રામનું રિપેરિંગ કરવામાં આવ્યું હતું। આ સળિયો હૃદયને સ્પર્શી છે, લીવરથી લઈને કિડનીથી આગળ પહોંચી ગયો હતો। આમ દરેક શરીરના ભાગને બરાબર નિરીક્ષણ કરીને અને જો ઈજા હોય તો તેવા કિસ્સામાં તેનું રિપેરિંગ કરીને શરીરમાંથી લોખંડના સળિયાને બહાર કાઢ્યો હતો। આ સર્જરીમાં એનેસ્થેટિકનો અલગ ભાગ ભજવેલ હતો। આ સર્જરીમાં જમણા ફેફસાના ભાગમાં ઈજા હોય અને તેની સર્જરી કરવાની હોય તો તેમાં દર્દીને બેભાન કર્યા બાદ તેના એક ફેફસાની મદદ સાથે ઓપરેશન દરમિયાન શ્વાસ આપવામાં આવેલ હતો। આ ઓપરેશન 5 કલાક સુધી ચાલ્યું હતું। ઓપરેશન બાદ આ દર્દી વેન્ટિલેટર પર હોય અને ગંભીર પરિસ્થિતિ હોય તો અમારી ક્રિટિકલ મેનેજમેન્ટ ટીમ ડૉક્ટર મિત્તલ કોઠારી, ડૉક્ટર હિમાની ગરાસિયા, ડૉક્ટર હાર્દિક દેસાઈ અને ડૉક્ટર રાકેશ અવિયા દ્વારા આ દર્દીની સારવાર આઈસીયુમાં કરવામાં આવેલ હતી અને તેને ફક્ત 3 દિવસની અંદર વેન્ટિલેટરમાંથી બહાર કરી નાખ્યા હતા। मेरा नाम डॉक्टर गगन साबू है। मैं कंसल्टेंट सर्जन पीपी मानिया हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड में हूँ और हमारे पास में मोहम्मद रफ़ीक नाम से एक पेशेंट थे जो कि 27 फरवरी के दिन उनका एक पीठ से सरिया घुस गया था और जब उसकी प्रिलिमिनरी टेस्टिंग हुई तो पता चला, सिविल हॉस्पिटल में पहले उनको लेकर गए, वहाँ प्रिलिमिनरी टेस्टिंग में ये पता चला कि वो जो सरिया था वो उनके छाती और पेट तक घुसा हुआ है। फिर वो पेशेंट को वहाँ से हमारे यहाँ पर लेकर आए और रफ़ीक भाई का हमने जो भी प्राइमरी इन्वेस्टिगेशंस की उसमें जिस तरह से हमारे को सामने आया तो ये समझ में आ रहा था कि जो दाएं बाजू का जो फेफड़े लंग्स है उसके और जो हृदय है उनके बिल्कुल पास से सरिया निकलते हुए और रीढ़ की हड्डी को भी इंजरी नहीं हुई इतनी, और फिर बाद में जो डायफ्राम होता है छाती और पेट के बीच की जो स्नाइल है उसको चीरते हुए लीवर, किडनी और नीचे की जो एक मांसपेशी आती है वहाँ तक घुसा। तो सरिया जो था वो तकरीबन 3.5 फीट पेशेंट के अंदर घुस गया था। इसके अंदर में सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग पार्ट जो था कि वो इंटरनल ब्लीडिंग रोकना था और जो फेफड़े के ना चोट लगी थी उसकी वजह से पूरे का पूरा हवा लीक हो रही थी। दाएं बाजू में फेफड़ा पूरा का पूरा दब चुका था। तो इमरजेंसी में सबसे पहले हमने ट्यूब्स डाली दोनों बाजू में छाती के अंदर, और ट्यूब डालने के बाद में हमने ऑपरेशन के लिए प्लानिंग करी। ऑपरेशन मैंने और डॉक्टर रवि सागर पटेल भाई है, हम दोनों ने मिलकर किया। वो कार्डियोथोरेसिक सर्जन है और हमारे पास में डॉक्टर ध्रुविन लिंबाड भाई और डॉक्टर संकेत कारकर भाई ये हमारे एनेस्थेटिस्ट थे। सो हमने ऑपरेशन के दौरान सबसे पहले नीचे जहाँ पर सरिया घुसा था पेट के अंदर उस हिस्से को पहले एक चीरा मार के वहाँ पर सब चीज़ों से जहाँ जहाँ ब्लीडिंग थी सबको कंट्रोल किया, किडनी को बचाया, लीवर को बचाया, और जो एक नीचे के हिस्से में सबसे बड़ी जो ब्लड की नस होती है आईवीसी बोलते हैं हम उसको, उससे भी उसको अलग किया गया। नीचे से ऊपर आते आते हमने पूरा उसको सेपरेट किया। उसके बाद में रवि सागर भाई ने छाती पे चीरा मारा और फेफड़े जो थे तो इसमें हमारे एनेस्थेटिस्ट का सबसे बड़ा रोल आता है
क्योंकि उन्होंने दाएं बाजू का जो फेफड़ा है उसको पूरा का पूरा वेंटिलेट नहीं किया, जिसका मतलब है कि वो पूरा कोलैप्स हो गया, एकदम छोटे भाग में हो गया और केवल लेफ्ट साइड के लंग पर पेशेंट का ऑपरेशन कर रहे थे हम। और फिर जो था उधर में देखा गया कि जो फेफड़े में चोट लगी उसको भी सही किया गया और जो हृदय के अंदर के बाजू से जो नस जा रही है उसको बचाया गया और फिर वहाँ का पूरे हिस्से से रोड को सेपरेट करके और फिर धीरे धीरे करके हमने रोड को निकाला, जहाँ जहाँ ब्लीडिंग के आसार लग रहे थे उसको कंट्रोल किया। अब इस एस्पेक्ट में दो चीज़ें सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर आती है हमारे सामने कि ऑपरेशन के दौरान ब्लीडिंग कंट्रोल करना वो एक एस्पेक्ट है, पर साथ के अंदर में जो देखना है कि ऑपरेशन में 24 घंटे के अंदर फिर से वैसी ब्लीडिंग ना हो, ये सबसे ज़्यादा बड़ा रोल है। ठीक है, तो इसके लिए जहाँ जहाँ हमने नलियाँ डाली थी वो सब की हमने रेगुलर मॉनिटरिंग करी। पेशेंट को हमको ऐसे पोजीशन में पहले वेंटिलेटर पे रखना पड़ता है ताकि हम उसको बेहतर तरीके से बाहर निकाल सकें। ऐसा नहीं था कि पेशेंट को हम डायरेक्ट वेंटिलेटर से नहीं निकाल सकते थे, बट उसके अंदर पेशेंट का बेटर आउटकम आने के लिए हमको वेंटिलेटर पे रखना पड़ा। फिर हमारी इंटेंसिविस्ट इंचार्ज के साथ में मिलकर और पूरी आईसीयू की टीम, जिसमें डॉक्टर मित्तल भाई कोठारी आईसीयू इंचार्ज है और डॉक्टर हिमानी मैडम है, वो हमारे आईसीयू के अंदर चीफ फिजिशियन आती है, तो उनके टीम के साथ में हमने पूरा उसको पेशेंट को मैनेज किया। वेंटिलेटर से पेशेंट 36 घंटे के अंदर वेंटिलेटर से बाहर आ गया पेशेंट। और जो जो ट्यूब्स डली थी, सो लेफ़्ट साइड की ट्यूब जो थी वो हमने तीसरे दिन निकाल दी। पेट के अंदर हमने ट्यूब्स डाली थी, वो ट्यूब भी हमारी निकली। इसमें जो सबसे बड़ी बात ये होती है कि पेशेंट को जिस दिन हमने वेंटिलेटर से निकाला उसके अगले दिन पेशेंट चलने फिरने लग गया। उसको हमने जो लंग्स के लिए एक्सरसाइज होती है वो सब शुरू करवाई और उन सब का रेस्पॉन्स अच्छा आया और उसके अच्छे रेस्पॉन्स के साथ में आज वो 10वें दिन बाहर आ गया है हर चीज़ से। ऐसे कई बार ऐसा देखा जाता है कि इनके अंदर इन्फेक्शन का रेट बहुत ज़्यादा रहता या और कोई लंग्स की इंजरी रहती है तो फेफड़े में पानी बहुत ज़्यादा भरता तो पेशेंट 6 महीने तक बाहर नहीं आता है। और कई बार ऐसा होता है कि डिलेड इंजरी समझ में आती है कि जो हमको हफ्ते भर या 10 दिन के बाद दिखाई दे, तो वैसी भी कोई इंजरी नहीं मिली है। सो ओवरऑल पेशेंट जो है इसका एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि ही इज़ द लकीएस्ट पर्सन ऑन द वर्ल्ड। वी कैन गिव हिम दैट टाइटल कि इतने सब बाजू बाजू से हर एक ना मेजर ऑर्गन को इंजरी होते हुए भी वो बच गया है, तो ये बहुत बड़ी बात है। ही इज़ द लकीएस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड।